اللہ تعالیٰ آپ سے بچائے. اس مرتبہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا تھا. مزہ آیا نا, حکومت ان کی مل آئی, ووٹ تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, میرا کوئی بات نہیں. نہیں خیر ہے نا, کوئی بات نہیں, ناراض نہ ہو. سینٹ میں سیٹ میں جو اصل ٹف ٹائم کے شکار ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں عوام. بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی اپنی سیاست بچانے کے چکر میں ہے. میرا جی 15 سال سے آپ ان کی بیگم ہیں. نہیں آپ مجھ سے کیسے بچیں گے, اداکارہ میرا تو پھر بچ جائیں گی. سینٹ میں نہیں, یہ سیٹ ٹھیک ہے, کیا باتیں کری جا رہی ہے. بابا جی آپ کو خبریں کچھ دے گا. السلام علیکم ناظرین, A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریج فاطمہ, اور آپ سب اس وقت دیکھ رہے ہیں بابا خبری. ناظرین کرام, آج ہم نے لینی ہے بابا خبری سے وہ ساری خبریں جو ہمیں پچھلے پروگرام میں نہیں ملی تھیں. کچھ بات کریں گے حریم شاہ اور الطاف حسین خالی ہی, اور ان کے ساتھ ساتھ الطاف حسین اور حریم شاہ کی ملاقات کے ساتھ ساتھ کچھ بات کریں گے ہم اداکارہ میرا کی بھی, اور ساتھ کچھ پیسے ویسے بھی مل گئے ہیں حکومت کو. تو بڑے کچھ باتیں آج کل ہمیں سیاسی ماحول میں ہلچل نظر آ رہی ہے. اس پر اور مزید ڈیٹیلز لینے کے لیے ہم نے کس سے لینی ہے خبریں؟ ہم نے لینی ہے خبریں بابا خبری سے. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. بابا جی جی یہ کیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا آپ ہوا؟ کی داڑھی نہیں ہے. داڑھی نہیں ہے؟ یہ تو واقعی نہیں ہے. کہاں گئی؟ اور میں نے کہا جی ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بابا خبری شاید کوئی بوڑھا شوڑا آدمی ہے, اور بابا جی ماڈرن ہے, اس وجہ سے میں نے کہا ایک خوبصورت اور نوجوان جو لڑکی جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرتی ہے, تو پھر داڑھی شاڑھی رکھ کے بندہ بوڑھا لگتا ہے, تو میرا امپریشن جو ہے وہ خراب ہو رہا تھا. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ بابا جی پھر آپ کے ساتھ براہ راست لائیو اور اوریجنل جو ہے وہ پیش ہوں, تو اس وجہ سے آگے ہیں. کیا آپ اور کیا آپ کے امپریشن؟ ہائے. اچھا کیا خبریں لے کے آئے ہیں آج؟ خبریں ایسی ویسی چوندی خبریں ہیں, کیا آپ کو بتائیں. یہ تو بس یار وہ تو دیکھیں آپ نے یہ جو میاں صاحب نے کام ڈالا ہوا ہے, میاں نواز شریف نے, آپ یقین مانے وہ جو کیا کہتے ہیں ہمارے خان صاحب نہیں ہے, یہ تو راتوں کو سوتے بھی نہیں ہیں, خواب میں بھی ان کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ان کو, سابق وزیر اعظم نواز شریف, جو خان صاحب ہے نا, ان کو خوابوں میں بھی نظر آتے ہیں نواز شریف. اور آپ کو خوابوں پہ خبریں نظر آتی ہیں. اور میں ان خوابوں میں سے جب دونوں کو دیکھتا ہوں نا, نواز شریف کو اور اس کو, تو پھر اس میں سے میں خبر نکالتا ہوں. ایک تو اچھا ایک نے تو رکھی ہوئی نا چڑیا, ایک نے کوئی کبوتر شبوتر رکھا ہوا ہے. میں نے خبریں لانے کے لیے پتا کیا رکھا ہوا ہے؟ لگڑ بگڑ. اچھا لگڑ بگڑ. ہاں لگڑ بگڑ. لگڑ بگڑ کے ساتھ آپ کی کیوں الٹی بنتی ہے؟ کیونکہ لگڑ بگڑ کے ساتھ میری لگتی ہے, اور جب اس کی میرے ساتھ بگڑ جاتی ہے تو پھر غصے میں مجھے اندر کی باتیں بتا دیتا ہے, صرف اسے تھوڑی سی جو ہے نا وہ کرنا پڑتی ہے. ہاں سمجھا کرے نا, آج کل یہ معاملات بہت ضروری ہیں, اور جب بندہ پھر حالت بالا میں ہو تو پھر سچ بول ہی دیتا ہے. جب وہ پھر سچ بولتا ہے تو بابا جی کو خبر مل جاتی ہے. اب دیکھیں نا جس طرح یہ میاں صاحب ہیں, حکومت نے بڑا زور لگایا ریت جی کہ اس کو ہم نے واپس لانا ہے. برطانیہ کے ساتھ بھی مذاکرات کر لیے, معاہدے کی کوششیں جاری ہیں, تو ویسے 2019 سے جاری ہیں. آپ کو تو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس وقت, لیکن مجھے یہ بتائیں نا, نواز شریف کی آپ بیماری کا ذکر کر رہے ہیں. ایک طرف نواز شریف کی بیماری ہے, دوسری طرف انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کے دنوں میں شاید وہ وطن واپس آ جائیں, لیکن تیسری طرف لندن میں موجیں کر رہے ہیں. بیماری کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ میاں صاحب صحت مند بیمار ہیں. اب جو صحت مند بیمار بندہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ہوتا ہے نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اب میاں صاحب نے وہاں پہ فیکٹری کا دورہ کیا ہے اور لندن میں, اور نیلسن کا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب ان کے جو صاحبزادے ہیں نا حسین نواز, انہوں نے بولا کہ جناب یہ جو میاں صاحب نے دورہ کیا ہے یہ کوئی 2-2.5 ماہ پہلے کیا ہے. اچھا. ہاں
ये मीडिया को अब खबर मिली है, जानबूझ के उसको नथी किया जा रहा है मौजूदा हालात के साथ। सारी खबरें बेचारे मीडिया पे ना डाल दिया करें, मीडिया का क्या कसूर है? बताइए आपका क्या कसूर है और मेरा क्या कसूर है? हमारा कोई कसूर नहीं है, ये जाने। वो देखे जो भी अपोजिशन में होता है ना, हाँ, होता है, या हुकूमत में होता है, उसको मीडिया खासकर हुकूमत वालों को तो जहर लगता है, ऐसा ही है, ठीक है। और जो अपोजिशन में होते हैं उनको ये थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है, जब इनके खिलाफ कोई थोड़ी सी बात कर दो फिर बहुत कड़वा लगता है। करें क्या? लेकिन हमने तो अपना काम करना है, जिस तरह आप अपना काम कर रही हैं। तो मियाँ साहब जो हैं वो मजे ले रहे हैं और मुंह चढ़ा रहे हैं इमरान खान का। हाँ, और वो कर लो जो करना है। कैसे मुंह चढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताएं ना। है? तो वो जो है मुंह चढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब, इमरान खान साहब, कप्तान साहब, नियाज़ी साहब। बाबा जी तुसी बुरा नहीं मनाना, आपका मुंह है थोड़ा सा पतला और नवाज शरीफ का मुंह है थोड़ा सा मोटा, तो जब आप मुंह बनाते हैं तो प्यारे नहीं लगते, जब वो बनाते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। वो इस वजह से प्यारे लगते हैं, वो खाते हैं हरी से, वो खाते हैं कीमे वाले नान, वो खाते हैं निहारी। मैं इन चीज़ों से परहेज करता हूँ, वरना मेरी जो पर्सनैलिटी और मेरे फिगर जो हैं वो ख़राब होते हैं। इस वजह से मैं जरा थोड़ा सा ऐसे रहना चाहता हूँ। बात में एक तो आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने देती, मुझे भुला देती हैं, मेरी याददाश्त कमज़ोर है। आम खाया करें ना। हाँ, अब बताइए मैं क्या बात कर रहा था, बीच में मुझे आपने सवाल ये तो दिया है, वो जनाब अजीब सी बात कर रही। अब क्या पूछ रही थी? इजाजत हो तो थोड़ी सी बात हुकूमत की कर लें। नहीं, ये पहले मुकम्मल कर लेना, ये अभी जो अब हाँ, मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ आपने उसको मुंह चढ़ाने पे मुझे अपने वो लगा दिया है, तो मुंह इस वजह से चढ़ा रहा है। वो कहता है इमरान खान साहब कर लो जो करना है, मैं नहीं आता, जब मेरा दिल करेगा तब आऊंगा। तुम कौन होते हो हम मुझको वापस बुलाने वाले? अच्छा। और उसने कहा मैं सैरें भी करूंगा, मैं बर्गर भी खाऊंगा, मैं पिज्जे भी खाऊंगा, मैं पोलो भी देखूंगा, शादियों की तकरीबात में भी जाऊंगा, गाने भी गुनगुनाऊंगा, बर्फी भी खाऊंगा, कीमे वाले नान भी खाऊंगा। आपको क्या तकलीफ है, आप भी खाएं। नहीं तो नहीं गाऊंगा तो नहीं आऊंगा। अच्छा। जो करना है कर लो। तो जब ये खान साहब तक बात पहुंची है तो खान साहब तक ये बात पहुंची है, ये व्यूवर्स को तो सुनने दें, आप तो पास बैठी हैं। जा रही है, कोई बात नहीं, आप मेरे कानों में ना दर्द होता है, यकीन जाने जब मैं घर जाती हूँ ना इतना दर्द हो रहा होता है ना। ये हाल है आजकल की कौम का, इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन, इसने मुकाबला करना है हाइब्रिड वार का। ये देख लें, ये जिस लड़की के कानों में बाबा जी की आवाज़ नहीं सुमा रही और ऐसी सुरीली आवाज़ से बाबा जी बोल रहे हैं, उसको वो कानों का दर्द कह रही हैं। तो व्यूवर्स आप हिसाब लगा लें। हालांकि जिस अंदाज से मैं बात कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा है कि बाबा जी तो बोलते बोलते मैं जब थक जाता हूँ तब फिक्रा जो है वो गिर पड़ता है, इसके बावजूद कह रही हैं। आपको मैंने आपकी तारीफों के लिए नहीं बिठाया, मैंने खबरों के लिए बिठाया है। जी पूछिए। इमरान खान को ऑपोजिशन फोबिया हो गया, जब भी तकरीर के लिए खड़े होते हैं ऑपोजिशन पे तनकीद, अवाम के मसाइल पे कोई नजर नहीं है। खान साहब अल्लाह का वास्ता है, ये चौथा साल शुरू हो गया है आपकी हुकूमत का, छोड़ दे पीछा नवाज शरीफ का। चौधरी शुजात साहब बड़ी पता की बात की है कि जितने पैसे आपने नवाज शरीफ से लेने हैं उससे ज़्यादा आपने उसके केसों पे लगा दिए हैं। वो कहता मैं वापस आना नहीं है। अच्छा मज़े की बात सुने, बरतानिया वाले भी कहते हैं हमने नहीं भेजना। अच्छा भाई बरतानिया वाले क्यों भेजेगा रीज जी? वो कहते हैं एक आदमी है वो यहाँ पे कारोबार कर रहा है, उसके बेटे कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें थबंचू मिल रहा है, हमें टैक्सेस मिल रहे हैं, तो हम इनको क्यों वापस भेजें? अगर वापस आना होता तो अब तक तो आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे जब हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, साजगार होंगे, हाँ। उनके फेवर में होंगे या उनकी फेवर में कर दिए जाएंगे, तब आएंगे। अब जो खान साहब अब इनसे निकल आए, कुछ नहीं होता, खुदा की कसम। ये आप इनको चोर कहते रहे हैं, आप इनको डाकू कहते रहे हैं, आप इनको माफिया कहते रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा इनको? वो तो मजबूत हुए हैं। मियाँ साहब बाहर चले गए, शहबाज शरीफ साहब 20 जमानत पे बाहर हैं, जहांगीर तरीन का भी आप कुछ नहीं बिगाड़ सके, शहजाद अकबर को आखिरकार आपने फारग कर दिया है, तो उसके बाद एक नया वो पोलू पलवान सा लगा दिया है मुसद्दक अब्बासी, वो बेचारा शरीफ आदमी है। गाना तो सुना है ना, मुझे क्यों निकाला है, मुझे क्यों। अब आपने गाना है ना जी? ना आप गाए, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। मिल के गाते हैं, मुझे क्यों निकाला। आप क्यों चुप हो गए हैं बाबा जी? आप बोल रहे, मैं अपना फिक्रा बोलूंगा। मैं क्यों गाने गा के आपसे खबरें ना लूं? मुझे आपने अब देनी है खबर हरीम शाह की। जानते हैं हरीम शाह को?
पहले नहीं जानता था, लेकिन जब से उसने वक्ता डाला है, वो जो पैसे वो पाउंड शॉन्ड वो दिखा के, यार वो तो कुड़ी इतनी यार तेज क्या है। इदारों पे उंगलियों नाच रही हैं, इदारे उंगलियों पे नाच रहे हैं। वो नहीं, उंगली पे नहीं नाच रहे, वो जो है वो किसी और चीज पे नचाती है। अच्छा वीडियोस, अच्छा ऑडियोज अच्छा। और वीडियोस भी, आहा हा 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 हा, तो उसने हर बंदा काबू किया हुआ है। अच्छा। यकीन माने मुझे तो अपने आप के कभी शक होने लगता है, हालांकि उसमें जिंदगी में कभी नहीं मिला। मैंने कहा कहीं मेरा ही ना कोई वो डुप्लीकेट सा बना के, आजकल वो चल जाता है ना जी, फोटो आपके कहीं आप लगा में दे, फंस जाए। नहीं फोटो मेरी लगा दे, दाढ़ किसी और का लगा दे तो मुझे फंसा दे। वो हरीम शाह बड़ी वो देखे ना, वो इसी वजह से तो कह रही है। उसने कहा ना, उसने तो पाकिस्तानी इदारों का, पाकिस्तानी कवानीन का, और उसने अपने, पाकिस्तानी करेंसी का भी। हाँ उसने उसको जूते के नोक पे रखा हाँ है। जी। उसने कहा कि अल्ताफ हुसैन को तो वापस ला नहीं सके आप। हाँ जी, और मेरे पीछे बात है, अल्ताफ हुसैन बड़ी दुआएं दे रहे थे उन्हें। हाँ ये आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे व्यूवर्स जो है वो क्या होती है, वायरल है कि वो लंदन में वो जा रहे हैं अपने घर, पता नहीं क्लिनिक जा रहे हैं अल्ताफ हुसैन, तो वहाँ पे वो हरीम शाह उनको मिल गई है और अल्ताफ हुसैन ने बड़ी दुआएं दी हैं। और यकीन मानिए दुआएं भी पहले उसने दी है उर्दू में, फिर दी है अंग्रेजी में, और क्या पलवान जिस्म पाया है अल्ताफ हुसैन ने भी हैं। तो सर तो फिर भी नहीं शर्म आनी? अल्ताफ हुसैन अगर हरीम को दुआएं दे सकते हैं तो आप मुझे नहीं दे सकते? हैप्पी बर्थडे टू यू व्यूवर्स। आज जो अरीज फातिमा की सालगिरह है, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आपके लिए दुआएं हैं। बाबा जी आप तो सलामत रहें ताकि मेरा प्रोग्राम सलामत रहे, मेरी खबरें सलामत रहें। अब वो भूल गए हैं, और सारे व्यूवर्स की जानब से, देखने वालों की जानब से आपको हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया जनाब। और मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हा बाबा जी अंग्रेजी भी बोलती है, ये देखा तो स्टाइल है, एक ही लहजे में, एक ही आवाज में बाबा जी ने जो बोला है ना जुमला, यकीन मानिए बड़ा जोर लगा है। मैंने कहा जी चले खुश रहें, अब ठीक है कमाल। लेकिन अल्लाह का वास्ता है, जो काम वो हरीम शाह ने किए हैं वो आपने नहीं करने, वो एक ही काफी है। ठीक है, हाँ ये मेहरबानी करना। मजे की बात क्या है कि आज मेरा जन्मदिन होने के साथ साथ आसिफा भुट्टो की भी सालगिरह है। आसिफा भुट्टो साहब आपको भी हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से भी, और हैप्पी बर्थडे। आप भी खुश रहें। हाँ बड़ी माशाल्लाह आपकी जो शक्ल है अपनी वालदा मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मिलती है। हाँ उनको भी हम सलूट पेश करते हैं, शहीद जमहूरियत हैं, और माशाल्लाह आप भी अच्छे खासे आप में उनके जरासीम जो है वो मौजूद हैं। तो किधर की बात किधर निकल गई है, क्या बात हो रही? हाँ हरीम शाह की बात हो रही थी। हरीम शाह FIA हो और इदारा हो, कस्टम हो, जो भी हो, वो कह रही जितने मर्जी मेरे खिलाफ पर्चे कर ले। अच्छा उसने एक काम और किया है। अच्छा। वो उन्होंने जमानत कबल अज गिरफ्तारी भी करवा ली है सिंध हाई कोर्ट से, और जमानत कराते ही उसने FIA को पैगाम दिया, उसने कहा कर लो जो करना है। उसने कहा ये है तुम्हारी औकात, और उन्होंने कहा FIA वालों शर्म करो, एक लड़की के पीछे पड़े हुए, तो मैंने मजाक किया था। अच्छा वो अपने व्यूज लेने के लिए, बिल्कुल वो उसके लिए, और ये बात इसमें शेख रशीद हो, इमरान खान हो, शाह महमूद कुरैशी हो, इस खातून ने उनको किसी न किसी अंदाज में खुश किया हुआ है। तो सब की चोरियां उसके पास हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है इसने अपनी पूरी बॉडी में कैमरे लगाए हुए हैं कि जिसके पास भी जाती है तो वो फिर काबू कर लेती है। अच्छा। वो इसी वजह से तो देखो ना, वो करोड़पति लाखोंपति, ऊपर से वो क्या चलाती है अपना वो सोशल मीडिया, लौका दम वो व्यूज आते हैं। और वो क्या तकलीफ हो रही है वैसे? नहीं मुझे कोई नहीं हो रही, मैं तो कह रहा हूँ कि देखें उसने कैसा मजाक उड़ाया है। हाँ, मतलब आप मुझे खबर दे रहे हैं वैसे। शख्सियात अहम शख्सियात वो ये क्यों नहीं बोलती उसके खिलाफ? इसी वजह से कि इनके पास सारा उनका कारनामे मौजूद हैं। हाँ जी। और कारनामे भी ऐसे वैसे कि अगर उनकी बीवियों के पास पहुंच जाएं तो मुंह भी ना दिखा सके। और जैसे आज बाबा जी की दाढ़ी गायब है। हाँ नहीं, बाबा जी की तो दाढ़ी आपकी वजह से गायब है, वो तो व्यूअर्स। हाँ इस वजह आज आपकी बर्थडे है, तो मैंने कहा बाबा जी जरा असल शक्ल में जाके आपको हैप्पी बर्थडे टू यू कर दें। और दूसरी बात, एक और बात मुझे याद आई थी। हाँ ये जो हरीम शाह ने आपको जो भी बात याद आई थी छोड़े उस बात को। हाँ छोड़ दिया, मानिए ना। क्या लेके बैठे हुए हैं आप? है इधर एक क्यों? लव यू IMF आई लव यू। हा इन्होंने आज बिल्कुल इसको उल्टा करके रखें। ना ये इनको सीधा करके, यू व्हाट
IMF जिंदाबाद। Why I वाह। love you IMF why? यार इतनी मैं कह रहा हूँ, शर्म नहीं आती आपको? IMF का मतलब पता है आपको? जिनको शर्म नहीं आती उनसे बात करें, शौकत तरीन से बोलें, मुझे गुस्सा न चढ़ाएं, फवाद चौधरी से बात आपने करें। तो कहा है ना लव यू। मैंने इस वजह से बोला कि इन्होंने ताज़ा 2 दिन पहले हमें $1 अरब दिया है। लेकिन 1 अरब कितना है? 176 अरब रुपया दिया है। किस छोड़ें वजह जी से? उसको आप छोड़ें। अच्छा सुने तो सही ना, बात तो सुने ना, चलो, बात मुकम्मल है, करने आप दिया सुना करें। अच्छा इस वजह से दिया है, मैं तो खुश इस वजह से हूँ, 176 अरब रुपया मिल गया। हमारी दालें महंगी कर दी, चिकन महंगा कर दिया, गोश्त महंगा कर दिया, आलू, बड़े बुरे लगते हैं कसम से। टमाटर, तो लव यू क्यों ना बोलूं? $1 अरब लेने के लिए हर चीज महंगी कर दी। IMF वाला तुम्हारा पेड़ा गर्क। पहले प्यार, क्या करे, ये है 1.5 लाख रुपए का मकरूज हो गया है हर पैदा होने वाला बच्चा पाकिस्तान में। पहले 1,35,000 यही तो मैं आपको कह रही थी। 35,000 का था, वो तो मैं मजाक उड़ा रखे। मैंने इस वजह से इसको चूमा है कि ये जो हमारे किबला और काबा हैं सियासी, जी शौकत तरीन ने ऐसे ट्वीट किया, अल्लाह के फजलो करम से IMF ने $1 अरब की मंजूरी वही दे दी लोग है। जो कहते थे हाँ। कि हम कर्जा नहीं लेंगे, कह रहे थे हम कशकोल नहीं उठाएंगे। हाँ आपने जी। कशकोल वाकई नहीं उठाया खान साहब, आपने तो पूरी देग उठाई हुई है, देग, और उसमें डालते जा रहे हैं, अपनी शराइत पे डालते जा रहे हैं। अच्छा वैसे बाबा जी आपस की बात और फवाद चौधरी वो भी बड़े दावे से कह रहा है जी हमने शराइत पूरी कर दी, मेरे और आपके खून पसीने की कमाई का बेड़ा गर्क, हाँ। हम महंगाई का तूफान, बिजली की कीमतें बढ़ गई, ठीक है। उसकी वजह से देख लें खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोल में की भी तो कीमतें पेट्रोल की भी बढ़ गई ना, नहीं अभी तो नहीं बढ़ी लेकिन पिछली बढ़ मरतबा बढ़ी थी, जाएंगी, हाँ। अभी थोड़ा सा अभी शुक्र है कह कि उसने रहे हैं। बढ़ाई। हाँ बिजली की बढ़ गई। हाँ। वो मार्बल वाले जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। और तो और बात सुनो, वो कह रहे हैं कि अब हमें जो बिल आता था वो आता था 2 लाख रुपया, अच्छा अब आता है 6 लाख, कहाँ से भरे हम? हाय, ये तो वैसे आप सही बात नहीं कर रहे अब आप बताएं, बाबा जी का बिल पहले 3,000 आता था, अब 9,000 आता है। अच्छा। आप अपने घर में पूछे, अब्बा जी से पूछे, अम्मा जी से पूछे, यकीन मानिए आपको पता चल जाएगा, पूछें जरा। बात तो आप ठीक कर रहे हैं हाँ वैसे। आज आपकी सालगिरह है, मैं आपका मूड खराब नहीं करना चाहता, नहीं तो- वरना $1 अरब के पीछे हमें क्या कुछ मेरा करना क्यों पड़ा है। डेस्क तोड़े हैं आप? आपका नहीं है, A1 TV का है। नहीं जी मेरा है, क्योंकि ये मेरा स्टूडियो इस वक्त, तो ये मेरा डेस्क हुआ। आपने खुद ही फवाद चौधरी साहब का जो है ना नाम ले लिया है, वो है वजीर इत्तलात व नशरियात, लेकिन वो दे रहे हैं आजकल बड़ी तजावीज। कहते हैं अदलिया को अपनी साख मजबूत करनी चाहिए, अदलिया को अपनी साख बेहतर करनी चाहिए, फिर करनी चाहिए। करनी चाहिए। वो नया आ गया है ना जी, वो जस्टिस उमर अता बंदियाल, आपको हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं, आपने बड़ी बात की है कि तमाम आईनी और कानूनी इदारों को आज़ादी से काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी हदूद में रह के करना चाहिए। कोई इदारा अपनी हद से ना निकले। आप भी अपनी हद से ना निकले। मैं तो नहीं निकल रहा, देखे अपनी हद में मौजूद हैं। आपके अगर आपको लगता है तो देखे फिर बाबा जी जब हाथ से निकलेंगे ना तो फिर आपको हरीम शाह याद आएगी। हरीम शाह का एक जुमला रह गया था। मुझे क्यों याद आएगी? वो आपने तो मुझे याद कराई है। अभी देखे ना उसने, अब देखे उसने वो पिछले दिनों होंठों की कराई ना सर्जरी, बिल्कुल कराई। तो वो एक होंठ खराब हो गया। अब आप ये देखें वो कितनी कुन्नी है और कितनी तेज है। उस सूजे हुए होंठ के साथ भी उसने लाखों व्यूज ले लिए हैं। बिल्कुल ले लिए। और लाखों व्यूज का मतलब है उसको थमंचू मिला है, हैं? तो ये देखे ये है उसका हाल। वो कोई मौका जाया नहीं जाने देते। बिल्कुल ऐसे और ये वो वजीर आजम ऑफिस में गई बार, फॉरेन ऑफिस में, क्या आपका मतलब है वहां पे? आप मैं तो नहीं जा सकते। वो पहुंच गई वहां पे, कैसे पहुंची? वजारत खारजा के अफसरान को खुश करके पहुंची। तो ऐसी बातें जो है ना वो नहीं करते। अब आ जाए एक और, सेनेट में हुआ है ना स्टेट बैंक बिल पास हो गया। जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलो, पता नहीं क्या खुसर फुसर कर रही हो। सेनेट में स्टेट बैंक का जो बिल पास हुआ है ना, उसकी वजह से यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी जो है ना वो आमने सामने हो गए। कौन सी सीट का बिल पास हुआ है? सेनेट में स्टेट बैंक बिल पास हुआ है। सेनेट में? बाबा जी बिल्कुल तंग ना करें मुझे। आइंदा अगर आपने कानों की सफाई ना की ना। हेलो, सेनेट में, मेरे साथ साथ बोले, सेनेट में, सीट में, सेनेट में, सीट में, सेनेट में
نہیں یہ سیٹ ٹھیک ہے, کیا باتیں کری جا رہی ہے بابا جی سینٹ میں, سینٹ میں, اچھا سینٹ میں اسٹیٹ بینک بل پاس ہوئے. ہاں تو شاہ محمود قریشی, آستہ بولیں, آستہ بولیں, کان پھاڑنے میرے, ہاں سمجھ آ گئی ہے. ہاں وہ جواب دیتے سمجھ آ گئی ہے, تو مجھے معاف کریں. شاہ محمود قریشی اور یوسف رضا گیلانی دونوں ملتان کے مخدوم ٹیچو بیچو کچو موچو ہوئے پڑے ہیں آج کل. حالانکہ ماضی میں دونوں بڑے پکے پیار محبت والے دوست تھے, لیکن اب سیاسی حریف ہیں. پہلے تو دونوں پیپلز پارٹی میں تھے نا. ہاں بالکل تھے. تو پرانی تصویریں بھی ان کی بڑی چل رہی ہیں. اب آگے ہیں یہ, اس میں ایک چلا گیا پی ٹی آئی میں اور دوسرے تو پیپلز پارٹی میں ہی ہیں. تو ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے ویسے کیا تو کمال ہے. کمال تو ویسے ساری اپوزیشن نے کیا ہے, کیونکہ جو کمال کیا ہے بھائی نہ استعفیٰ ڈرامہ تھا. استعفیٰ دیا جاتا ہے چیئرمین سینٹ کو. ہاں اس کی حیثیت ہونی تھی, اگر چیئرمین سینٹ کو دیتا, وہ اپنے پارٹی چیئرمین کو دے دیا, وہ تو ایسے ہی ہے, دیا نہ دیا. اچھا ہاں اس کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وسیم شہزاد کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ غیر حاضر تھے. کیا واقعی ان کے استعفے سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ان کے آنے سے فائدہ ہی ہو رہا ہے, جب سے وہ آئے ہیں, بلکہ جب سے وہ لائے گئے ہیں. اچھا یوسف رضا گیلانی کو لانے کے لیے 6 ممبران پر مشتمل دلاور خان گروپ بنایا گیا. اچھا وہ دلاور خان گروپ کو اپوزیشن میں, ہاں جی وہ اس کو اپوزیشن میں بٹھایا گیا, لیکن وہ ہیں اندر سے حکومتی بندے. جب ان کا دل کرتا ہے جو بھی قانون سازی کرنی ہوتی ہے, دلاور خان گروپ جو ہے وہ چھال مار کے حکومت کی چلا جاتا ہے سائیڈ پہ. ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بالکل بتائیں. بتاؤں؟ اچھا کان زیادہ ادھر نہیں کرنا. ہاں یہ جو نہیں ہے اپنا دلاور خان گروپ, اس نے بھلا کیسے ووٹ دیا ہے؟ کیسے؟ یہ نہیں ہے شوکت ترین وزیر خزانہ, بڑے منہ والے, سلک بینک بھی پیش کرتے رہتے ہیں نا, سلک بینک کے مالک. ہاں نیب میں کیس بھی چل رہے ہیں ان کے خلاف. او بھائی ہاں تو جناب وہاں یہ گئے ہیں ان کے گھر, اچھا دلاور خان کے, اور جا کر ان کا ہاتھ میں انترلا کیا ہے. کوئی ان کو وہ گوڈے چھوٹے بھی دبائے ہیں, اور ساتھ کہا ہے کہ ملکی مفاد میں اس بل کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے تو مہربانی کر کے یہ 6 ووٹ ہمیں دے دیں. اچھا تو انہوں نے پھر کہا جی آن کیمرہ بات کر رہے ہیں جی پکی. تو پھر انہوں نے کہا دلاور خان نے, انہوں نے کہا جی مجھے بھی یوسف رضا گیلانی کا میسج آیا, کال بھی آئی ہے, اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے سینٹ میں آنا. انہوں نے کہا جی بالکل آئے, لیکن آپ نے ووٹ بل کی فیور میں دینا ہے. تو پھر قومی مفاد میں انہوں نے ووٹ, قومی مفاد کو تو آپ اچھا قومی مفاد ان کا کیا ہے؟ کوئی اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. یہ دیکھیں عوامی مفاد اور قومی مفاد شفاد کوئی نہیں ہے. سیاستدانوں کا زیادہ تر کا قومی مفاد یہ ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے. بس آپ کہیں کہ ذاتی مفاد, آپ قومی مفاد نہ کہیں ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. ویورز جی ان سے بات کر رہا ہوں. نہیں خیر ہے نا, کوئی بات نہیں, ناراض نہ ہو. ویورز بات یہ ہے, ہمیشہ قومی مفاد کو سیاسی اور ذاتی مفاد پہ ترجیح دے, یہ نہ کرے جو یہ ہو رہا ہے. دلاور خان گروپ کا تو اب کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اس گروپ نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے اپوزیشن میں رہ کے, تو اپوزیشن کو بھی یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ یہ بل پاس کروانا ضروری ہے, ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیل شیل کی باتیں ہو رہی ہیں وہ پھر باتیں ساری کی ساری ادھر ادھر رہ جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہ پھر آپ کو ڈیل ملے گی نہ ڈیل ملے گی. میں ڈیل کرائیاں ڈیل کا میرا تن من ڈیلو ڈیل. ہائے 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 کیا کہہ دیا بابا جی. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے, ان کو بھی سمجھ آ گئی. اب یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, عوام کے ساتھ, تو جی ایجنڈا لیٹ کا جاری کیا, چیئرمین سینٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا, اور وہ فلاں کرے یہ کرے. بھائی چیئرمین سینٹ نے ٹھیک کیا, بالکل ٹھیک کیا. اس کا صحیح تھا. جب اس کو پتا چلا ووٹ برابر ہو گئے تو آخری ووٹ جو ہوتا ہے وہ چیئرمین سینٹ کا ہی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آتی آپ کو جتنا بھی منع کر لو. اداکارہ میرا کے بارے میں بتائیں. عتیق الرحمان کو انہوں نے اپنا خاوند تسلیم کر لیا ہے, کیونکہ ان کی والدہ کی بھی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں نا. تو اداکارہ میرا کے بارے میں کوئی خبر نکال کے لائیں. کیا خبر نکالی ہے؟ سو نہ جایا کریں نا, بتایا کریں. میرا جی پوچھنا اب آپ سے یہ ہے
کہ نکاح کے اوپر تو سیشن جج نے اب کا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور آپ کو کہا ہے کہ 2007 میں ہی آپ عتیق الرحمان کی وائف ہیں اور اب ہو گئے ہیں 13 اور 15 سال سے آپ ان کی بیگم ہیں اور تمام وہ شواہد آپ کے خلاف جاتے ہیں کہ آپ ان کی بیوی نہیں ہیں. تو اب مجھے بتائیے کہ آپ کس کے ساتھ جائیں گی؟ وہ کیپٹن تنویر کے ساتھ جائیں گی؟ وہ کیا نام ہے جو جہاز چلاتا تھا؟ ایک وہ بھی تھا نا جس کے ساتھ ان کی ایک ویڈیو شیڈیو بھی آئی تھی. ہاں بڑی نظر رکھتے ہیں. جی بالکل رکھتے ہیں، کیوں نہیں؟ بابا جی نے جب خبریں رکھنی ہیں تو پھر رکھنے نا سارے. تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اور عتیق الرحمان کے ساتھ اب تو آپ کی والدہ نے بھی کہہ دیا ہے، شفقت بی بی کا میسج ویڈیو بیان، اس نے کہا ہے کہ میں عتیق الرحمان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور میرا کو باعزت طریقے سے اپنے گھر لے جائیں اور انہوں نے کہا جی جتنا بھی وہ کردار ہے وہ صلح صفائی میں کروانے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کو جو منظور تھا وہ ٹھیک ہے، اب عدالت کا فیصلہ آ گیا اور عدالت کا فیصلہ یہی ہے. اب میرا جی آپ عتیق الرحمان سے کیسے بچیں گے؟ آپ مجھ سے کیسے؟ اور وہ جو کیپٹن نام میں غلط لے گیا، معذرت چاہتا ہوں، کیپٹن نوید اس کا نام تھا. آپ مجھ سے کیسے بچیں گے؟ اداکارہ میرا تو پھر بچ جائیں گی. اللہ تعالیٰ آپ سے بچائے، آپ کی باتوں سے، آپ کے ان ظالمانہ سوالات سے مجھے بچائے. ٹھیک ہے، بالکل بھی ظالمانہ سوال نہیں ہے، اتنے معصوم طریقے سے میں آپ سے پوچھتی ہوں کیونکہ میں بھی تو اپنے مفاد کا سوچتی ہوں نا، خبریں نکلواتی ہوں. ہاں تو سوچے، ہر بندہ اس وقت مفاد و مفادی ہوا پڑا ہے، تو آپ اپنا مفاد سوچ رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا جی اپنی ماں کی بات پہ غور کریں. کیپٹن نوید کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے وہ ٹھیک ہے، عتیق الرحمان آپ کو اپنانے کو تیار. ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اب آپ نے 50 سال بعد بھی تو 25 کا نہیں نہ رہنا. اب آپ کہتی کہ 25 کے بعد میری عمر کو جو ہے وہ ریورس لگ جاتا ہے، اب 24 کی ہو جاتی ہے. یقین مانیں میری عمر آپ سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے لیکن آپ 25 پہ ٹھہری ہوئی ہے. میں جب 25 سال کا تھا تو اس وقت آپ کی پہلی فلم میں نے دیکھی تھی. اللہ کا واسطہ ہے میرا جی، آخری دن اس بیچارے کو خوش کرے، اس کے ساتھ وہ آپ کو رکھے. سب کو ابھی بھی آپ کو یاد ہے 25 سال کے جب آپ تھے تب آپ نے پہلی فلم دیکھی تھی. اچھا تو پھر مجھ سے تو نہیں ڈر رہے نا، ایک سوال پوچھ رہے ہوں اگر اجازت ہو تو. جی پوچھے، اور آپ کو یہاں پہ پکوڑے تلنے کے لیے رکھا ہوا ہے. ویسے یہ آپس کی بات. اچھا بابا خبری، سوال تو میں بعد میں پوچھتی ہوں نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، حکومت اپوزیشن کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، حکومت اپنے ہی اندر اپنے نمائندگان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور اپوزیشن جو ہے نا ایک جماعت دوسری جماعت کو اور دوسری جماعت پھر سے پہلی جماعت کو ٹف ٹائم دے رہی ہے. لیکن اس ٹف ٹائم میں جو اصل ٹف ٹائم کے شکار ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں عوام. بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ اس ٹف ٹائم کے شکار اور اس کا نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ آپ کو پہنچتا ہے. یہ میں نے کھنڈی آپ کے گلے میں اس وجہ سے ڈالی ہے کہ دیکھیں، میں نے اگر آپ پہ کیس کرا دیا پھر کرا دے، خیر کوئی بات نہیں، تو کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے، کرا دے، یہ تو پروگرام کا حصہ ہے، کرائیں. بسم اللہ، بالکل کرائیں. بات سنیں میری، میں کرواؤں گی. کروائیں. اچھا بات سنیں اب میری. اچھا یہ گھما پھر آگے نا، میں کوئی اتنا کوئی بے وقوف نہیں ہوں. I am not a fool. I am not a foolish man. ہیلو، بات کریں سیدھی. یہ مجھے گول چکر کی طرح مت گھمائیں. جو بات پوچھنا چاہ رہی ہے نا وہ پوچھیں. یہ اپوزیشن حکومت کو کر رہی ہے، حکومت اپوزیشن کو کر رہی ہے، وہ ادھر کر رہی ہے، یہ ضرب ہے، یہ تقسیم ہے. سیدھا سوال پوچھیں، پوچھنا جو پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھیں، میں بتاؤں گا. ٹف ٹائم کا میں نے پوچھنا تھا. نہیں ہے کوئی ٹف ٹائم، ڈرامے بازی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرے جا رہے ہیں. ایسا ویسا بے وقوف عوام کو ہی بنایا جا رہا ہے نا. بنایا جا رہا ہے، ہم بنے ہوئے ہیں. تو ہم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ہم اس وجہ سے بنے ہیں کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے، اور ووٹ دو ان کو. اور تسی پاؤ ذرا ووٹ. میں نے تو نہیں ڈالا، یقین مانیے میں آج کیمرے کے سامنے کہتا ہوں میں نے تو جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. ہاں جی، اور بتائیں. میں نواز شریف کو دے کے تھک گیا، پیپلز پارٹی والوں کو دے کے تھک گیا، ان کو دے کے تھک گیا. میں نے اس مرتبہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا تھا. مزہ آیا نا، حکومت ان کی مل آئی ووٹ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میرا کوئی بات نہیں. لیکن ہمارا جو ایک ضمیر ہے اس کے مطابق ہم نے اپنا حق خود ارادیت جو ہے ووٹ ڈالنے کا، بڑا مشکل ہے اس بابا جی نے بول دی اس عمر میں. وہ ہم نے استعمال کیا ہے. ایسی تو بات جو ہے وہ نہیں ہے. 2023 میں کس کو ووٹ دینا؟ میں یہ تو نہیں بتاؤں گا، ووٹ میری امانت ہے.
थोड़ा सा बता दें। ना ये जो मैं देखूंगा उसके बाद 2023 में ये करते क्या है। अभी तो ये सारे यकीन मानिए, तो ये क्या आपकी वोट की कश्मकश जो है ये तालियों और थालियों वाली है? हर कोई अपनी सियासत बचाने के चक्कर में है, मुझे आप बताएंगे? हर कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में। एक तो मुझ पर ये प्रेशर ना डाला करे बाबा जी, प्रेशर किसी का नहीं लेते। अच्छा। ये बेफिक्र हो जाए कि मैं आपको बताऊंगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप वोट किसको डालेंगे 2023 में, आप मुझे बताएंगे? मैं तो बता दूंगी। बताए फिर। मैं तो बाद में आपको बता दूंगी। अभी बताए इसके सामने। अभी क्यों बताऊं? ये जो चल रहा है ना, ये सिस्टम, ये भाई जो पीछे खड़ा हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अभी मैं आपको बताऊं। क्यों बताऊं? बाबा जी से को पूछ रही है। बाबा खबरी है ना। जर्नलिस्ट जो है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा ठीक है। वो किसी पार्टी का नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो रख दिया करे ना, कितनी बार मना की है। इसमें खबरें आ रही होती हैं बीच में, मैंने कहा कोई लेटेस्ट खबर आ जाए तो आपके साथ वही शेयर कर लूं। हाँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको। MNA की खबर आई है ना, मैंने क्या जी, इसमें तो सारे हमारे जितने भी ये ग्रुप शॉप बने होते हैं ना। हाँ वाह जी वाह। जवेरिया की कोई खबर थी ना, कोई MNA जवेरिया हैं, कोई हैदर अली हैं, उनका क्या किस्सा है बताए ना। हाय देखा, ये होती है बात। देखे मैंने फौरन जैसे निकाला। अब ये जफर हैं और जवेरिया जफर हैं व्यूअर्स, बताएं। तहरीक इंसाफ की MNA है। बिल्कुल है, ठीक है। हाँ जी। इनके साथ इन पे एक साहब हैं हैदर अली, वो भी MNA है और वो भी तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा। वो इन पे हो गए लट्टू। अच्छा। दोनों का कुछ अफेयर्स भी चला, कुछ महीने चला, और उसके बाद हैदर अली साहब ने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो जवेरिया ने भी कहा जी पहले अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो ठीक है, करनी चाहिए। अगर उन्होंने कर ली, दूसरी करे, तीसरी करे, 4 की तो गुंजाइश है। अब आप ये नहीं पता कि आप दोनों की दूसरी है तीसरी है, वो आपका जाती फेल है। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन शादी हो गई, उसके बाद दोनों में कोई लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो जिस तरह घर में कोई बातें शातें होती हैं। तो अभी जो इल्ज़ाम लगाया है जवेरिया जफर साहबा ने वो बड़ा खौफनाक है। क्या? उन्होंने कहा कि ये मुझे मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ पड़ते हैं, और इन्होंने मेरे साथ निकाह जबरदस्ती किया 6 माह पहले। अच्छा। अगर जवेरिया साहबा जबरदस्ती किया था तो उस वक्त आप क्यों नहीं बोली और कहा कि मैं इनसे खुला लेना चाहती हूँ। और जब मैंने खुला की बात की है तो इन्होंने पिस्तौल निकाल लिया है और मुझ पर फायर किया, ठिशू किया है। तो उसने कहा मैं जरा साइड पे हाथ उठ गई हूँ, फायर जो है वो दीवार पे लगा है। तो उन्होंने थाना वोमैन पुलिस स्टेशन में वो दरख्वास्त जमा करवाई थी। रिपोर्ट तो फिर उनके जो मियाँ साहब हैं, अभी तो उनके मियाँ ही है ना, अभी तो खुला बिल्कुल, तो वो उन्होंने अपने तहरीक इंसाफ के मियाँ को, यानी कि अपने मियाँ को जेल भिजवा दिया है। 14 दिन के जुडिशल रिमांड पे हैदर अली साहब जेल चले गए हैं। ठीक है। और ये जवेरिया जफर ने उनके ऊपर ये जहर है, ये बड़े तशद्दुद करते हैं और मारने की, जान से मारने की। नहीं, ये तो देखो उनका जाती फेल है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो उन्होंने इतना सीरियस छलांगे लगाते हैं जाती फेल में नहीं, खबर की हद तक तो मैं खबर दे सकता हूँ। ये इस वजह से मैंने दी, ये खबर ओपन हो गई। अच्छा। इसकी FIR कटी हुई है। जवेरिया साहबा ने FIR कटवाई है और मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया है। तो उन्होंने उनका 14 रोज़ा रिमांड पे उनको जेल भिजवाया है। तो इस वजह से ये खबर जो है ना, वो मैं घरों में नकब नहीं लगाता। हाँ, ये इस तरह की मीरा शीरा ये होते हैं पब्लिक फिगर, और ये जो सियासी बंदे होते हैं ना, इनकी भी कोई जाती लाइफ नहीं होती। ये कहते हैं ना कोई नहीं, ना गिद्दड़ है ना बबकी है। हाँ, मैं कहता हूँ कि इनकी कोई देखें, जो सियासतदान होता है ना, हाँ, होता है, चाहे जो MNA है, सेनेटर है, MPA है, हाँ। आप अपने आप को बीच में से निकालें तो वो जो भी होता है तो वो मैं वैसे भी ना MP हूँ ना MNA हूँ, आप क्यों मुझे बार बार निशाना बना रहे होते हैं? नहीं, आप भी कोई शो करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं बड़ी कोई मायानाज एंकर हूँ, तो मैं भी देखे मेरी बात तो सही में आपको इससे कोई फर्क पड़े ना पड़े, मुझे तो इससे फर्क पड़ता है ना। मुझे तो नहीं बिल्कुल भी पड़ता। आपको फर्क ना पड़े भाई, ना कोई नहीं पड़ेगा। अच्छा, बात ये है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। उनकी पब्लिक फिगर जो हो गया ना, उसकी फिर कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। लोग उस पर कमेंट करते हैं तो आपको जो है वो फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि आप उनको भूल जाएं। और ये आपको किसी ने कोई कमेंट किया? वो खड़े बड़े करते रहते हैं, बड़े ऐसी को बात नहीं दुखता ना, पक्की बात है। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। अच्छा, फिर जाते जाते बताए ना क्या आखिर में खबर लेके आ रहे हैं हमारे लिए अगले प्रोग्राम में? व्यूअर्स, अगले प्रोग्राम में भी जो हफ्ता भर में सारे मामलात होंगे ना, उसमें से बीच में से चौंधी बाबा जी आपको खबरें कुछ देगा, जलेबियां भी निकाल के दिखाएंगे। क्योंकि कुछ खबरें जो है ना वो जलेबियों की तरह, जलेबियां तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी होती है, लेके आना
खबरें भी टेढ़ी होंगी, क्योंकि देखें आप हमारे व्यूवर्स हर तरह के हैं, नौजवान भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बाबे भी हैं, बाबियाँ भी हैं। तो इस वजह से इस वजह से हम हर किस्म की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि बाबा जी को नींद आ जाए, ये अल्लाह का वास्ता है, इसकी बात सुन लें। और एक बात आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये जो नहीं है अपना, एक तो हमारा प्रोग्राम है बाबा खबरी, तो इसको आप देखें A1 टीवी पे। ठीक है। हाँ, इसको आपने करना है। हाँ, एक आपने करना ये है, वो यूट्यूब पे आप जाएंगे ना, A1 टीवी लिखेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आपने करना है सब्सक्राइब। हाय हाय हाय, बाबा जी ने क्या लफ्ज बोल दिया है, सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब सब खैर है ना, आपके लाल बटन को जो है ना वो दबा दें, घंटी का बटन होता है। चलें, ये बाकी बात आपको बता देती हैं, मुझे इजाजत बाबा जी नाराज तो नहीं है ना? वैसे पक्की बात है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी बाबा जी, फिर इजाजत ले लेते हैं। उनसे मैं उन्हीं से लूंगी, पहले आपसे तो ले लूं ना। मेरी जान छोड़े। हाय अल्लाह। तो जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का भी प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा और यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। बाबा जी की खबरें हमेशा मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, मुझे बड़ा मज़ा आता है बाबा जी से खबरें निकलवाने में, यकीनन आप लोगों को सुनने में मज़ा आता होगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान अरीज फातिमा को बाबा खबरी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे पाकिस्तान का भी आला निगहबान।